Hello everyone. In our previous class, we have read about algebraic expression. Okay. Now we will see the types of algebraic expression. Right. So the first type of algebraic expression is monomials. Right. The first type of algebraic expression is monomials. Monomials means where we can see the only one term. In the expression where we see the only one term is called the monomials. Like that, I have written xy. This is the monomial because there is only one term. 5x. This is the only one term, so it is monomial. Like y, only one term, so it is a monomial. So as so many examples we can give you related to the monomials, right? Now, the second type of the algebraic expression is binomial. Binomial, right? Binomial जैसा कि आपको नेम से ही लग रहा है बी, ठीक है, बी binomial means the two terms will be in algebraic expression is called the binomial. In which algebraic expression where you can see only two terms, that type of algebraic expressions are called binomial. By the name only you can see by. अब जैसे both का means क्या होता है two. तो सेम एज इट इज अगर आपने बाइनोमियल देखा है तो आप समझ जाओगे कि बाइनोमियल मीन्स द algebraic expression where you can see the two terms are called the binomial. I'll give you examples like 2x plus y. Here are the two terms. The first term is 2x and second term is y. So it is called the binomial. Now another example if I give you x plus z. Here also x is a one term and z is another term. So that we call a binomial. If another like a plus b or 2 plus c, these all are the examples of binomial because we can see there are the two terms, right everyone? Now the third part is, first one is monomial, binomial, the third one is trinomial. Again by the name only you can understand, tri means the algebraic expression where you can see the three terms are called the trinomial. Right, again if I give you example x plus y plus z, यहाँ पर देखिए 1 2 3, there are three terms, so it means it is the example of trinomial. Secondly I tell you like 2x plus a plus b, again you see 1 2 3 1 2 3, there are three terms, so it means it is a trinomial, right? Now fourth one is quadrinomial. Quadrinomial where you can see the four terms like x plus y plus z plus p or 2a plus b plus 5c plus d. So here are four terms, so wherever we can see the four terms, that type of polynomials, that type of algebraic expressions are called quadrinomial. ठीक है? Now the last type of the last type of algebraic expression is polynomial. Polynomial जो आप क्लास 9th में जाके एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ते हैं polynomial, ठीक है? So that polynomial is a type of algebraic expression. Polynomial where the term will be two or more than two, ठीक है? Where you can see the term two or more than two are called a polynomial, right? जैसे x plus y plus z, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है. 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z, ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल मीन्स. और ये quadrinomial is also called a polynomial, ठीक है? Because again I have just now I have said कि where you can see the term two or more than two. More than two का मतलब क्या हुआ? In the polynomial you can see the quadrinomial also, you can see the trinomial also, and you can see the binomial also, right? Only you will not see the monomial. Monomial is a specific one, ठीक है? Again I am going to repeat all the types of examples that you will understand better one. First type is a monomial where you can see the only one term, ठीक है? टर्म के मीन्स होता है कि जहाँ पर बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है,
ठीक है. Wherever the addition is come, that is a one term, addition or subtraction. Multiplication, in the multiplication we are not observing that it is a another term. Like here they both are in a multiplication, but this is a single term, right? Here also they both are in a multiplication, but it is a single term. Here they both are in a between the here in both of the variable there is a sign of positive, ठीक है, plus sign. So they both are different term, means x is in a one term and z is in a another term. Term समझ में आ गया होगा. So monomials where we can see the only one term, binomial where we can see the two terms, trinomial where we can see the three terms, quadrinomial where we can see the four terms, and polynomial where we can see the term two or more than two. Just in the case of polynomial we can see a binomial we can also give, trinomial also we can give, or quadrinomial also we can, right? So these are the types of algebraic expression. ठीक है, I have told you about the 5 types of algebraic expression: monomial, binomial, trinomial, quadrinomial and polynomial. Okay, now the next topic related to this chapter is about factors, right? I hope आपने फैक्टर्स के बारे में क्लास 4th में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बट दैट वन इज फैक्टर रिलेटेड टू द नंबर्स. हियर we will see the factors related to the expressions, related to the algebraic expressions. Like if suppose factors I have given, right? यहाँ पर suppose I have given you one monomial, that is 5x square y, that is for 5x square y, right? That is 5x square y. हमने एक मोनोमियल लिया, that is 5x square y, ठीक है. And I was am I going to ask you what are the factors of 5x square y, right? So factors of are 5 factors of, just a second, now I think it is visible to you. 5x square y means क्या इसके factors होंगे? So these all are the factors of each one, right? Means अगर हम इसके factors लिखने हो, so we will write 5 into x into x into y, right? These all are the factors of the given monomials. Okay? जैसे आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10, तो आप उसे ऐसे फैक्टराइज करते थे, 2 5 are 10, 5 1 are 5, तो आप कहते थे कि द फैक्टर्स ऑफ 10 इज 2 and 5. तो सेम एज इट इज आपने 10 को क्या किया था, स्प्रेड किया था. जस्ट यू हैव टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ द 10 इन विच टेबल दैट 10 विल कम, दैट यू हैव रिटन. ठीक, द सेम एज इट इज इन फैक्टर्स, व्हाटएवर मोनोमियल इज गिवन टू अस, that we will factorize it. ठीक है, that monomial we will spread it. 5x square y is there, so 5, that simple 5 we can write. Okay, x square को we can write x into x and y we can write simply y. Same as it is if I given you another example like 6xy square z. Okay, now if I said what are the factors of the given one, right? So आप इसको कैसे factorize करोगे? Now here we can factorize the 6 also. How? 2 into 3. Am I right? 2 into 3. 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो स्मॉल नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं. 2 3s are 6, 3 1s are 3. So the factors of 6 is 2 into 3. Now x is single, so that we will write a single one. Y को हम क्या लिख सकते हैं? There is a 2 times of y, so y into y. Now the single z. So these all are the factors of the मोनोमियल 6xy squared z. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, what यहाँ पर ये 6 and this 5, इन दोनों को हम 6 and 5 को हम एक अनदर नेम देते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर या फिर न्यूमेरिक फैक्टर, राइट? 5 and 6 we can see the numeric factor. Some of the time there is a 1 marks question it is coming. In 5x square y, what, tell me the numeric factor of this one. ठीक है, so what is the numeric factor?
सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई भी मोनोमियल कुछ इस तरीके से गिवन है -xy या -x²y and asking that what are the numeric factors here, then what you will give the answer. You have seen that there is a no numeric factor is here. If anything is not there, then what we are letting? 1. So numeric factor answer will be -1, right? So these I have explained you about the factors, right? फैक्टर्स में आपको सिंपली मोनोमियल से गिवन दिए जाएंगे और मोनोमियल्स में आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे. फैक्टर्स में फिर से बताती हूँ, जितनी भी हमें फैक्टर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई होती हैं मोनोमियल्स में, ठीक है, वो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. 5x²y, तो अगर हमने पूछा कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ x, ठीक है, इन दिस मोनोमियल, तो इस मोनोमियल में x का फैक्टर क्या होगा? 5x और y, ठीक है. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन मोनोमियल्स. आई थिंक फैक्टर्स के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा. फैक्टर्स अब आपसे जब भी पूछा जाए, जो जितनी भी चीजें आपको मोनोमियल्स में गिवन है, आप उन सबको क्या कर देंगे? स्प्रेड आउट कर देंगे, तो वो सारे क्या होंगे? आपके फैक्टर्स, ठीक है. दिस इज सेकेंड टॉपिक दैट आई हैव एक्सप्लेन टुडे. नाउ द थर्ड टॉपिक इज कोफिशिएंट. That factor and coefficient is some related to each other. That's why this also I will explain you. Okay. Coefficient. कोफिशिएंट भी हम मोनोमियल्स में ही फाइंड करते हैं. जैसे हमने आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया 6xyz, ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज का कोफिशिएंट पूछा जाता है. जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस मोनोमियल. इस मोनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्सेप्ट टू x whatever will be there in a monomial, that all are the coefficient of the given question. यहाँ पर x के अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? the coefficient of x. So except to x, here is 6, y and z. 3 things are there. So these all are the coefficient of what? X, right? These all are the coefficient of x. Same as it is. अगर हमने आपसे कहा कि 2xy, again I am asking what is the coefficient of y here, ठीक है. तो except to y, whatever is left here, that is the coefficient. So except to y, whatever is here, 2x. So 2x, the coefficient of 2xy. 2x, the coefficient of 2xy, right? 2x जो है वो कोफिशिएंट है किसका? y का, ठीक है. अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाला, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. अगर हमने आपसे कहा, राइट, ये हमने आपको मोनोमियल दिया और हमने आपसे कहा कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन द गिवन मोनोमियल, एक्स वाई इन द गिवन मोनोमियल, देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट, ठीक है. आपको ध्यान में रखना है कि हियर इज 1x एंड हियर इज 1y, बट in the monomial here is 2x and 3y, ठीक है. Asking about the 1x and 1y, and in a monomial it is given 2x and 3y. So what we will do, मैंने भी बताया था कि कोफिशिएंट मीन्स जिस चीज का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है उसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो उसका क्या हो जाता है? कोफिशिएंट हो जाता है. तो x y के अलावा जितना भी बचेगा वो सब कोफिशिएंट होगा, whether that is x और y also. तब भी अगर वो x और y भी मिल रहा है तब भी वो उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ आप देखो तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर आप इसको स्प्रेड आउट करोगे देन यू विल गेट x इंटू एक्स, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड. अगर हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो अब अगर आप देखो, अगर एक x और एक y को हटा देते हैं क्योंकि उसी का हमसे कोफिशिएंट पूछा गया है, तो आपको याद आएगा मैम ने बोला था कि उसको हटा के जो कुछ बचता है तो क्या बच रहा है? x
into y into z, means we are getting xy square z, means xy square z is the coefficient of x and y, means xy square z is the coefficient of xy. आई थिंक सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए कि जितनी भी पावर्स होती हैं, तो ऐसा नहीं कि एक्स वाई पूछा गया तो हमने एक्स वाई को हटा के सिर्फ जेड लिख दिया, नहीं, उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग भी हम उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हियर ऑल्सो द सेम थिंग इज देयर, जस्ट लाइक ऑन अ फैक्टर वन न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे हम किसी भी सिंगल डिजिट को या नंबर को न्यूमेरिक फैक्टर बोलते थे, वहां पर फैक्टर वाले टर्म में सेम ऐसे ही कोफिशिएंट में, जैसे ये 6 है तो 6 इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट इन द गिवन मोनोमियल। सो न्यूमेरिक कोफिशिएंट, जो भी आपको नंबर मिलेगा, जो भी आपको नंबर गिवन होगा, वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट क्या होती हैं, हम स्टेटमेंट फॉर्म को कैसे इक्वेशन फॉर्म में बदलते हैं या इक्वेशन फॉर्म को कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने थोड़ा सा एडिशन के बारे में बताया था, बट जब आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आपको एडिशन ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मीन्स आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अबाउट फैक्टर्स, अबाउट कोफिशिएंट, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको लाइक और अनलाइक टर्म भी बताया था। हमेशा याद रखिएगा, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको दूसरी चीज बताएंगे, जिसके थ्रू सपोज हमने यहाँ पर आपको दिया वैल्यू, हमने यहाँ पर आपको दी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ठीक। और मैंने आपसे कहा, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया 2x स्क्वायर प्लस y, and I have said find the value of the given expression, find the value of the given expression। कैसे आप फाइंड आउट करोगी, अगर आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है दैट वैल्यू यू विल पुट इन योर इक्वेशन, ठीक है, एज इट इज। हमेशा याद रखिएगा, अगर दो नंबर से दो चीजें गिवन है, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इट मीन्स दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई है, सो वी विल पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, और इन प्लेस ऑफ एक्स द वैल्यू इज गिवन हाउ मच, 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, तो हमने y की प्लेस पर 2 रख दिया। अब पहले अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल वी विल गो, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि पहले इसको मल्टीप्लाई वो कर देंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट। तो 2 इंटू 1 1 ज़ा 1 प्लस 2, अब अकॉर्डिंग टू बॉडमास अगेन फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई एंड देन वी विल ऐड। ये नहीं कि आपने 2 + 1 किया फिर उससे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नो, दैट विल बी अ रॉन्ग। ऑलवेज व्हेनेवर यू विल सी द इक्वेशन, बिग इक्वेशन, तो वहाँ पर हमेशा आपको बॉडमास रूल ही फॉलो करना है, चाहे आप स्मॉल क्लास का इक्वेशन कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन, चाहे आप बिग क्लास का करें, दोनों में आपको बॉडमास रूल ही फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, सो यू विल गेट द आंसर 4, ठीक। सेम एज इट इज, अगर हम आपको कोई दूसरा एक्सप्रेशन दें, सपोज अब हमने आपको वैल्यू थोड़ा चेंज कर दी, x इज इक्वल टू -1 किया, y इज इक्वल टू 1 किया और z इज इक्वल टू 2 कर दिया, और आपको एक इक्वेशन दे दी x स्क्वायर माइनस 2y प्लस z, ठीक। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर्स, लाइक वैल्यू x की कितनी दे रखी है, -1, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू, अभी मैंने बताया कि बिटवीन द टू नंबर एनी साइन इज नॉट देयर, देन वी आर लेटिंग इट इज मल्टीप्लिकेशन, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस z की वैल्यू 2 दे रखी है, चलिए इसको -2 कर देते हैं तो थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर -2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे। एक चीज मैं बताऊंगी यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होती है, अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होती है देन द नंबर विल बिकम अ पॉजिटिव, राइट, एंड इफ दैट पावर इज ऑड देन द नंबर विल बिकम अ ऑड। जैसे सपोज हमने यहाँ पर आपको कोई नंबर दिया,
हमने लिखा -1 की पावर अगर यहाँ पर 3 होती, द पावर ऑफ -1 इज 3 मीन्स -1 क्यूब, देन यू विल गेट -1. And if the power of -1 is 4, this is even. The power is even and here this power is odd. So whenever you will get the power odd, then your number will become negative. And whenever you will see the power is even, then directly you can write the number as a positive one. And it doesn't matter that inside the 1 is there, then only the rule will be followed. No. आप यहाँ पर कोई भी नंबर गिवन हो, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स का जो रूल है वो हर नंबर में फॉलो होगा. यहाँ पर अगर हम लिखें -2 की पावर 3, ठीक है, तो 3 इज व्हाट, ऑड नंबर, तो मीन्स पावर विल बी नेगेटिव, सॉरी द आंसर विल बी नेगेटिव. जो भी उसका आंसर आएगा, लाइक 2 2 4 4 2 8, तो ये नेगेटिव का हिट आएगा. ठीक है. इन प्लेस ऑफ दैट अगर ये -2 की पावर 2 लिखा होता, ठीक है, मीन्स हियर यू कैन सी द पावर इज इवन. तो इवन नंबर में हमेशा क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता. ठीक है. इन साइड में नंबर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर. अगर आपकी पावर ऑड है तो अगर आपका पावर ऑड है तो आपका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर इवन है तो आपकी पावर जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा. तो आपको कभी भी 1 by 1 स्टेप माइनस प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा. एनीवेज नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे -1 की पावर 2 थी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया 2 है, इवन है, इट मीन्स हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा, हमें पता है. प्लस यहाँ पर माइनस है तो 2 × 1 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द इंटीजर रूल, प्लस माइनस, सो वी पुट हियर माइनस एंड वी विल गेट 2. ठीक. यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन करते समय आप पहले इसको माइनस करते हो, जो आंसर आता है उससे इसको माइनस करते हो. एक रूल बना लो, जब कभी भी ऐसा कहीं पर भी हो तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख लो, फिर नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिख लो. ठीक है. सारे पॉजिटिव ऐड कर दो, सारे नेगेटिव भी ऐड कर दो. फिर क्योंकि पता है अगर नेगेटिव ऐड होंगे तो बीच में माइनस का साइन आना ही आना है, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दो. ठीक. बेस्ट ऑप्शन होता है ये ऐसे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का. अगर आप इसको यहाँ कभी कभी आंसर आ भी जाता है इस तरीके से सॉल्व करने पर. जैसे अगर आप यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा. सही हो जाएगा. ठीक. हम मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जब आप थोड़ा सा हायर लेवल में बढ़ते हो तो ये आपका प्रोसेस रॉन्ग हो जाता है. इसीलिए जब भी मैं सिखाती हूँ तो हमेशा मैं यही बताती हूँ कि सबसे पहले आप सारे पॉजिटिव को एक साथ लिख लीजिए, सारे नेगेटिव को एक साथ लिख लीजिए. पॉजिटिव यू नो दैट यू विल ऐड, नेगेटिव भी माइनस प्लस होता है तो एट द लास्ट हम उसे ऐड ही करते हैं. लेकिन जब भी हम नेगेटिव को ऐड करते हैं तो उसके पहले साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है. फिर हम दोनों को माइनस कर देते हैं. ठीक. खैर, अब यहाँ पर तो अगर हम इसी रूल के अकॉर्डिंग चलें तो पॉजिटिव तो सिर्फ 1 ही है, तो उसको कुछ करने से फायदा नहीं, उसको हम ऐसे लिख देंगे. नेगेटिव में क्या आ रहा है, माइनस है, तो हम लिखेंगे -4. ठीक. अब हमारे पास प्लस माइनस 1 - 4 3. बट जो साइन ग्रेटर नंबर के सामने होता है हमेशा हम वही साइन अपने आंसर में लगाते हैं. तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर 4 है और 4 के आगे 3 माइनस लगा है, तो हमारे आंसर में भी साइन किसका लगेगा, माइनस का. एंड दिस इज आवर आंसर. ठीक है. सो रिलेटेड टू दिस आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो. दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इट, एंड इफ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज गिव मी अ कमेंट. ओके. थैंक यू क्लास. बाय बाय.